Student of standard 8, and today we are going to discuss the most important chapter, that is our Indian constitution. Friends, this chapter is extremely important for your standard 8, of course, and it will be going to be repeated in standard 9th. And one more thing I would like to inform you that this chapter will give you the conceptual clarity about how our country run. Okay, but first of all, as you can see on your screen, then some of the character are given: Haley, Priyansi and Sachin. They were watching the World Cup match 2001, exciting match between India and Sri Lanka, World Cup final. I exactly remember the date also, 2nd April 2011. And that morning I just buy the t-shirt of India, still I'm having it. So let us they are discussing on the match was excited. Sri Lanka batted first. They put a very strong target in front of the India, and when India started batting, the most dangerous player, Sachin Tendulkar and Virendra Sehwag, got out earlier. So something like कि अब क्या होगा, क्या मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. But anyhow, somehow our captain Mahendra Singh Dhoni and made it possible, and we won the World Cup. And but before few matches in the league stages, there was one match between India and England, and both of team had secured 338. Nowadays अगर सेम स्कोर पे अगर मैच ख़त्म होता है, then we having the super over, but at that time the system was like that, it's a tie. Okay, so game is not important, but here rules. See, there are certain rules that before it is like that, 15 overs, you are only two players allowed outside the circle. So who's doing all such kind of activity? ICC. Okay, so they are setting the rules, they are making changes in the rules, not only in the game of cricket but in other game also, like hockey, football, kabaddi. They all having such rules, and if we are following the rules and if we play the game sincerely, then we can enjoy it a lot. So रूल्स होने के कारण ये सारी गेम इंटरेस्टिंग बनती हैं, एंड वी वुड एंजॉइंग इट. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, सी, I'm going to the bottom part of the slide. When I'm reading these three golden lines, you have to be remember, uh, a systematic compilation of set of rules to run the government of a country is known as the constitution of the country. So ये क्या है, आपका कंट्री का एक बुक होती है जिसमें आपके कंट्री को कैसे वर्क करना है उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन शो किए होते हैं. ओके, सो व्हाट इज इट? इट्स अ कंपाइलेशन. So many rules are combined, so it's a compilation, and that is collected for the government. Okay, and they will decide how to run the country. The constitution can be written or oral form. So Indian constitution is the biggest one, and it starts with the preamble. Preamble is just like a index of the book. Okay, whenever you take any book, you will going to be open the index, and in index you will get an idea that there are 8 or 10 chapters are there. In the 5th chapter we have to discuss on that particular topic. So as it is written on the last line that our constitution starts with the preamble. So preamble, how it looks, तो ये आपको जो blue दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, that is our preamble. Okay, so I am not going to read it with the people of India and so and last में ourselves this constitution. So let us move to the next slide. Okay, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं that we are going to discuss in the chapter itself. Let me adjust it. Okay, done. So how was the constitution of India formed? तो ये इंडिया का constitution बनाया किसने? There should be a question in your mind. Okay, so it is somewhere near 1945. The Britishers had they conduct a meeting with the Indian leaders that within 4-5 years we are going to free you, and if you want to be independent country, then there should be rules and regulations should be there. So you start to making your own constitution, अपना rules regulation आप बनाना start कर दो. So when it started on the, you can see on the third line, 9th December 1946. Okay, there were many leaders. So photographs is also given. See, Maulana Azad, Bhimrao Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Sarojini Naidu and Kanhaiya Lal Munshi. So these are the people who are there. Let me read
all the names of the leaders. See here it is given that leaders like Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Maulana Azad, we just see him his picture, Sam Prasad Mukherjee, Sardar Baldev Singh. So they are giving their important guidance. Frank Anthony represented the Anglo-Indian community of H.P. Modi represented the Parsi community. Anglo-Indian community एक ऐसा वर्ड होता है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन अगर का बंदा ना हो तो वो रिप्रेजेंट कर सकता है. ओके, से फॉर एग्जांपल इट्स ए हाइपोथेटिकल. सी हमारे पार्लियामेंट में सारे मेंबर हैं पर कोई भी सरदार जी नहीं है. डेट मीन्स सिख रिलीजन से कोई नहीं है. तो तब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कोई जो स्कॉलर होगा जिसको मतलब सिख रिलीजन का पूरा नॉलेज है, दैट पर्सन एज ए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जा सकता है. इट कैन बी पारसी ऑल्सो. हियर इन द केस इज पारसी. ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. इसके अलावा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी एंड एक्सेट्रा. See etc is written in standard 9. You will going to see there are 385 people. Don't worry, you don't have to remember all the names. You have to remember only few names which are given. एक दो भूल भी जाते हो तो it's okay. See there are some female members also like Sarojini Naidu and Vijaya Lakshmi Pandit. Dr. Rajendra Prasad is the president of this Constitution Assembly. And friends, Dr. Rajendra Prasad is our first president also. Ramnath Kovind is the right now is the प्रेसिडेंट. द मोमेंट विच आई एम द मोमेंट जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इन द अपकमिंग ईयर्स कौन होगा डेट विल बी नो. नाउ आगे बढ़ते हैं. सी ऑल दिस मेंबर दे सिट टुगेदर, दे डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर्स. ओके, इनकी टोटल 166 मीटिंग हुई एंड इट टुक 2 years 11 months and 18 days. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली हम लोग अगर राउंड अप करें तो 3 years लगे थे. सो आपको रिमेंबर रखना है 2 1 1 11 18 2 11 18 ओनली दिस यू हैव टू रिमेंबर. ऑन 26 November द कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन विच एनफोर्स्ड ऑन द 26 January. सो पार्लियामेंट में तो ये पास हो गया था 26 जनवरी नवंबर को 1949 के दिन, बट इसको हमने इम्प्लीमेंट कब से किया? 26 जनवरी 1950 से. तो फ्रेंड्स लेट मी गिव सम आइडिया कि ये कैसे इन लोगों ने क्या क्या किया. से फॉर एग्जांपल सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं एंड उन लोगों ने पहले सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे. तो वोटिंग राइट के लिए थोड़ा इशू हो सकता है, हुआ होगा शायद. से फॉर एग्जांपल कुछ लोग कह रहे होंगे कि 16 years रखते हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं 18 रखते हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं वो कंट्री में तो 20 years है, तो कुछ बोले नहीं तो वो कंट्री में 14 years हैं. तो सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वोटिंग के लिए 18 years होना चाहिए. ओके, देयर वर अनदर डिस्कशन वाज देयर. आई वॉच्ड इन एपिक चैनल दैट इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है. ओके, सो मेजरली वी नो इट वेरी वेल कि हिंदी ज़्यादातर लोग बोलते हैं, बट discussion is there and the people from the South India they put their objection because they don't know how to speak Hindi and they put their voice. So friends remember इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. इंडिया ने 22 और 23 आई एम नॉट रिकॉलिंग राइट नाउ इतनी लैंग्वेज को इंडिया ने रिकग्नाइज किया, बट इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. 1 minute. So this by this way our constitution formed. Okay, so these were the leaders. Remember Dr. Bhimrao Ambedkar, okay, and Dr. Rajendra Prasad were the key person. Let us move to the next slide. Yes, here it is asked that why do we need a constitution. हमको constitution की ज़रूरत क्या है? चलो मान लेते हैं कि constitution हो ही ना, तो but remember friend, no country can work without constitution. Okay, if we are moving through the vehicle, अगर रोड पे कोई ट्रैफिक ही ना हो तो क्या होगा? ट्रैफिक जाम होगा, एक्सीडेंट्स होंगे. ओके, सो कोई भी कंट्री को अगर प्रॉपरली गवर्न करना है दैट मीन्स इसको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे. ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के बारे में बहुत कुछ बताता है. कंट्री डेमोक्रेटिक है, प्रेसिडेंशियल है, ओके, रिपब्लिक है, बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम इट गवर्नमेंट कैसे कांटेक्ट करेगी, इलेक्शन कितने सालों में होंगे, सो ये सब चीज़ें हुई थी.
एंड थिंग्स टू नो में यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोगों ने हमारे यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन लोगों ने पहले बहुत ही डिटेल में ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वोटिंग के लिए क्या हो सकता है, तो हर कंट्री का अलग अलग होगा, पर हमारे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सूट होता है, सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, से फॉर एग्जाम्पल यूएसए में तो हर इन एवरी 4 years वी आर हैविंग इलेक्शन, बट इन सम कंट्रीज द इलेक्शन आर हेल्ड इन द 6 years, so we decided to conduct election in every 5 years. Okay, so by this way the constitution of India is the longest written constitution in the world. if you comparing the constitution books, दो so इंडिया की जो constitution book है वो सबसे heavy मिलेगी आपको. Let's move to the next slide. Now here in this slide we are going to discuss the salient feature of our constitution, and in that we are going to discuss the democratic rule, secularism, and on the next slide we are going to discuss the republic also. So first of all, democratic rule क्या होता है? Okay, 1 minute. Now see, since India had adopted the democratic system of government, means यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन होगा. 18 years के अबाउ कोई भी पर्सन है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, पुअर हो के रिच हो, चाहे उसको पढ़ना आता है या नहीं आता है, लिटरेट है या इलिटरेट है, इट डजेंट मैटर, ही कैन कास्ट हिज वोट. 1 person 1 vote. एंड ये जो वोटिंग राइट होता है ना, ये हमारे लिए गोल्डन चांस होता है कि हम लोग अपना डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकें. ओके, जहाँ पे हम लोग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से हम लोग खुश हैं या नहीं हैं. अगर हम गवर्नमेंट से खुश हैं तो हम लोग उसके फेवर में वोट देंगे, एंड अगर हम गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में वोट देंगे. ओके, सो दिस इज़ वे जो हमारे जो लीडर्स होते हैं जिनको हम चुनते हैं, तो उनको हम लोग हर 5 साल में जब उनको मौका मिलता है तो हम लोग उनको चेंज कर सकते हैं. नॉट लाइक मोनार्की कि एक ही किंग है जो हमेशा हम पे रूल करेगा. ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर 3.3 दैट पीपल आर वोटिंग. वेरी सिंपल प्रोसेस, जहाँ पे आपको पहले आपका वोटर आईडी कार्ड देखा जाता है, जहाँ पे आपकी डिटेल मैच की जाती है. फिर आपको वो अपनी एंट्री कर लेते हैं, आपको फिंगर पे एक वो मार्क कर देते हैं, एंड अंदर जाके आपको वोट करना होता है. इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस. नाउ सेक्युलरिज्म. सी, यहाँ पे मैं आपको पहले सेक्युलरिज्म से पहले एक मैप डिस्कस करना चाहूँगा. सी, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये जस्ट मैंने अभी नेट से डाउनलोड किया है. सी, ये पूरा वर्ल्ड मैप है. ओके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कोई अंटार्कटिका में तो रहता नहीं है, सो नॉट द पार्ट. सी द ऑन द मैप यू विल सी द ब्लू कलर. ओके, सो दिस ब्लू कलर इंडिकेट दैट ये ऑल कंट्रीज सेक्युलर है. सेक्युलर मीन्स इनका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है. ओके, इंडिया, अगर इंडिया को देखो तो इंडिया में भी ब्लू कलर लगाया हुआ है, दैट मीन्स इंडिया के लिए कोई भी रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है. सिंस यू कैन सी रेड पार्ट मीन्स व्हाट, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर द इस्लामिक कंट्री. फ्यू ऑफ देम आर क्रिश्चियन ऑल्सो, एंड अदर रिलीजन भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ देम आर इस्लामिक कंट्री. एंड वेयर यू कैन सी द पर्पल पार्ट, दिस कंट्री हैविंग डजंट डिक्लेयर दैट वी आर एनी फोकसिंग ऑन एनी रिलीजन और वी आर सेकुलर कंट्री. इन्होंने कुछ जब तक डिसाइड किया नहीं है. ओके, सो सेकुलर का मतलब क्या होता है? सी, हमारे लिए सारे धर्म इक्वल हैं. इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है. लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ द पाकिस्तान. पाकिस्तान सेज दैट वी आर ए इस्लामिक कंट्री, एंड पाकिस्तान इज ए इस्लामिक कंट्री. एंड सिंस इट्स ए इस्लामिक कंट्री, तो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता हुआ ही होना चाहिए. ओके, सो मान लो कि वहाँ पे कोई सिख है, कोई सरदार जी है, या कोई हिंदू स्कॉलर है, या कोई क्रिश्चियन स्कॉलर है जिसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, जो मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनना डिजर्व कर सकता है, बट वो नहीं कर सकता, वहाँ पे नहीं बन सकते. हाँ, वो अगर रिलीजन चेंज करके इस्लाम फॉलो कर लेते हैं, एंड देन दे कैन बी. बट इन इंडिया, सी, अब सिंस अवर कंट्री इज ए सेकुलर कंट्री, डेट मीन्स हमारे लिए सब कोई रिलीजन के ऊपर हमारा कोई भी मतलब ऐसा बंधन नहीं है. सी, वी आर हैविंग अब्दुल कलाम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट वी हैव. ओके, सो इंडिया में हर कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, प्रेसिडेंट भी बन सकता है ना. आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, बिकॉज ही इज़ द डिजर्विंग पर्सन. ओके, सो लेट अस मूव. एंड
See, since these people are there following different religion, इंडिया में हर कोई अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है एंड वो अपने रिलीजन के हिसाब से चल सकता है। जब भी चाहे वो अपना रिलीजन चेंज कर सकता है, बट इट कांट बी फोर्सफुली। कोई आपकी गन रखे सर पे और कहे कि चेंज द रिलीजन, तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिपब्लिक। ओके, एंड सी अगेन रिपब्लिक, तो मैं पहले ये दो लाइन रीड कर रहा हूँ। रिपब्लिक मीन्स ए गवर्नमेंट डेट ऑब्टेन पावर फ्रॉम द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को जो पावर मिलते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डेट इज कम फ्रॉम द पीपल ओनली। सिंस वी आर द पीपल हु इन गिविंग देम वोट, तो गवर्नमेंट बनती है ना। हम लोग जब उनको टैक्स देते हैं तब वो हमारे लिए फंड्स उनको मिलते हैं और तब वो हम पे खर्च कर पाते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फैमिली है, जैसे मोनार्की में होता था कि कोई पर्टिकुलर किंग है, उसकी फैमिली ही रूल करेगी, राजा का बेटा ही मतलब या उनका कोई रिश्तेदार ही कंटिन्यू करेगा, ऐसा नहीं है। रिपब्लिक मीन्स पब्लिक का रूल है एंड पब्लिक को अगर जो एग्जिस्टिंग मिनिस्टर है उनको ठीक नहीं लग रहे हैं, देन दे कैन चेंज इट ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे थिंग्स टू नो में कुछ दिया हुआ है, लेट मी गो थ्रू इट। एनी कॉमन पर्सन, मैन और वुमन, टू बी द हॉकर और अ वेजिटेबल वेंडर कैन बी सरपंच और अ विलेज। नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मान लो अगर कोई सब्जी वाला है, कुछ भी है, वो भी अपने गांव का सरपंच बन सकता है। जस्ट बिफोर फ्यू मिनट्स मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ पे कंट्री में कोई भी अगर वो डिजर्विंग है तो वो बन सकता है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ मैसन मांझी भाई कंटेस्ट इलेक्शन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ द एंड बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, जो स्टेट लेवल पे होता है। ओके, और एमपी जो होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो यूजुअली हमारे लोकसभा राज्यसभा के लिए होता है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक चार्ट दे रखा है, तो आपको इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। सी यहाँ पे दो चार्ट दे रखे हैं, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन द स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। सी सिंस अवर कंट्री जब फेडरल कंट्री, तो यहाँ पर है ना हमने सारे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं एंड सम पावर आर गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हु इज़ द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? पहले हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पर फोकस करते हैं, प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट के अंदर में आता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव वो लोग होते हैं जो हम लोग इलेक्शन होता है इंडिया में लोकसभा का, तो 543 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, दो तो मतलब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी जाते हैं। तो दिस 545 पीपल दे सिट टुगेदर, दे कैन फॉर्म लॉ, पर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके, एंड ये लोग कानून बनाते हैं। इफ़ दे वांट एग्जिस्टिंग कानून को चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। एंड उनको लगता है अगर कोई जो लॉ है वो नाउ नॉट रिक्वायर्ड, देन दे कैन रिमूव इट ऑल्सो। एग्जीक्यूटिव में आता है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम, जिसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्ट्री बोलते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। कैबिनेट मिनिस्टर में बहुत सारे मिनिस्टर आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। ओके, ये सारे डिसीजन लेते हैं। सो देखो, प्राइम एग्जीक्यूटिव के अंदर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में जो लोकसभा राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। एंड अगर गवर्नमेंट ठीक से काम ना करे तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी हमने रखी हुई है, जुडिशरी, जिसका काम होता है अगर हमको जिसका काम होता है जस्टिस प्रोवाइड करना। समटाइम इट हैपन कि गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं। ओके, स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपको सेंट्रल लेवल समझ में आ गया तो स्टेट लेवल आपको स्टेट गवर्नमेंट समझ में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ जस्ट रिमेंबर, गवर्नर इज़ द रियल हेड ऑफ द कंट्री। ओके, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट के जो फॉर एग्जांपल गुजरात में 182 सीट्स हैं, तो 182 मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली में 70 मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे 70 लोगों के लिए होगा। और माइट भी इन राजस्थान 200 सीट्स आ रहे। तो ये विधानसभा, विधान परिषद होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स बैठ के रूल्स बनाते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव में सीएम होते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। नाउ सीएम के अंडर में भी है ना डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं एंड वो डिस्ट्रिक्ट को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। अब डिपेंड करता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या तो शहर भी हो सकता है या गांव भी हो सकता है। इफ़ इट इज़ विलेज देन पंचायत इज़ देयर।
इट डिपेंड कि पॉपुलेशन कितनी है। अगर पॉपुलेशन मान लो बहुत कम है देन वन सरपंच इज़ सफिशेंट। अगर गांव थोड़ा बड़ा है तो कहीं कहीं पे मैंने देखा है देरा 3 सरपंच भी होते हैं, कहीं पे 5 होते हैं, कहीं पे 7 भी होता है, डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने मिलता है, बट पॉपुलेशन बेस ही होता है। एंड अगर हम लोग सिटी में रहते हैं देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपालिटी, डिपेंड करता है पॉपुलेशन। 5 लाख का हमने क्राइटेरिया स्टैंडर्ड 6 में समझ लिया है। एंड जुडिशरी, स्टेट लेवल पे सबसे बड़ी कोर्ट जो होती है डेट इज कॉल्ड द हाई कोर्ट। ओके, उसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्क करती है एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स करती हैं। ओके, सो आई थिंक हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए रेडी हैं। सी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट वी ऑल हैड डिस्कस्ड। ओके, एंड गुजरात हैज विधानसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हाई कोर्ट। वाई सो? सी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। सी विधानसभा इज लाइक अ लोकसभा एंड विधान परिषद इज लाइक अ राज्यसभा। सो देर आर सर्टेन स्टेट जहाँ पे सिर्फ विधानसभा ही काम करती हैं, बट देर आर सर्टेन स्टेट जहाँ पे विधान परिषद भी होती है। डेट वी आर गोइंग टू सी इन द स्टैंडर्ड 9th. But till for this moment we have to remember that Gujarat has only legislative assembly, that means Vidhan Sabha. Now federal state, India is a federal state. Okay, so federal state में क्या होता है? सी हम लोगों ने क्या किया है, सारे पावर एक ही गवर्नमेंट को नहीं दे दिए, कभी कभी पावर का मिसयूज भी होता है। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया है कि हर स्टेट में एक अलग अलग गवर्नमेंट वर्क करती है और सेंट्रल पे भी एक अलग गवर्नमेंट वर्क करती है। अगर बैंकिंग का इशू आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी, लेकिन अगर पुलिस फोर्स की बात आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी। ओके, इट माइट बी हैपन। जो फॉरेस्ट रिजर्व्स होते हैं ये सारा काम स्टेट गवर्नमेंट का है, एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन मिलिट्री का इशू आए, फॉरेन अफेयर्स की बात आए, रेलवे का इशू आए तो वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है। जो भी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है डेट इज कॉल्ड द यूनियन लिस्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है डेट इज कॉल्ड द स्टेट लिस्ट। देर आर सर्टेन इशूज जहाँ पे दोनों गवर्नमेंट मिलके भी काम करती हैं एंड डेट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट लिस्ट, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट डेट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके साथ में काम करती हैं। ओके, सर्टेन इशूज लाइक क्राइम, मैरिज, डाइवोर्स, ये सब इसमें आता है। फर्दर हम लोग इसको स्टैंडर्ड 9th में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ फंडामेंटल राइट्स, दिस थिंग वी नो इट वेरी वेल। फंडामेंटल राइट्स हमको 26 जनवरी को मिल गए थे, द मोमेंट वी आर द रिपब्लिक कंट्री एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हो गया था। सो फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत क्या है? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पहले होते क्या है, पहले वो हम लोग वो समझ लेते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं नीचे बिफोर एक्सरसाइज, अबाउट द एक्सरसाइजेस। इक्वलिटी बिफोर द लॉ। सी हमारा फंडामेंटल राइट क्या बोलता है कि आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, लॉ सबके लिए इक्वल है ना। इट्स अ क्राइम कि हम लोग अगर ट्रेन में विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। अगर हम लोग बिना टिकट के अगर ट्रैवल करते हैं तो हमको जो फाइन होगा वो सबके लिए इक्वल ही होगा, चाहे वो कितना गरीब हो या अमीर हो, जेल भी हो सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, यहाँ ये भी है ना हमारा एक फंडामेंटल राइट कि हम लोग कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज देन वी कैन चेंज, है ना, बट फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, हम लोग कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, है ना, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं। ओके, एंड एक्सप्रेशन, दैट मीन्स हम लोग अगर गवर्नमेंट के किसी स्टेप से खुश नहीं है तो हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट क्रिटिसिज्म एक पर्टिकुलर वर्डिंग्स की जो लिमिट होती है उसको फॉलो करनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग गवर्नमेंट को गाली गलौज करने लग जाएं, है ना। वी हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आई थिंक मैं एक पॉइंट स्किप कर गया था, थर्ड पॉइंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, है ना। हमको अपना जो भी प्रोटेस्ट करना है पीसफुल करना है, बराबर ना, आसपास वालों को डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट, है ना। अगर गवर्नमेंट मेरे साथ कुछ गलत करती है, से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को अगर डेवलपमेंट के लिए मेरे घर के ऊपर से एक फ्लाईओवर बनाना है और पिलर एग्जैक्टली मेरे घर के ऊपर आ रहा है, तो मेरा घर तो डिमोलिश हो रहा है, तो गवर्नमेंट का ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आइदर टू प्रोवाइड मी अनदर हाउस और आइदर जो मेरे घर का पैसा बनता है मुझे दे दो, मैं अपना घर खरीद लूँगा। बट गवर्नमेंट अगर मुझे कोई पैसा भी नहीं दे रही है और घर ही प्रोवाइड नहीं कर रही है तो मैं क्या करूँगा? सो मैं कोर्ट में जाके केस करूँगा, सिंपल सी बात है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स, जो मेरा राइट टू फ्रीडम है, वो गवर्नमेंट मुझसे छीन रही है, देन आई कैन यूज इट ऑल्सो। ओके,
सो फ्रेंड्स यार ये चैप्टर के आपको बेसिक आइडियाज़ मिल गए। स्टैंडर्ड 9th में आपको ये चैप्टर और इन डिटेल आपको जानने मिलेगा। सो फॉर दिस मोमेंट आई एम एंडिंग माई सेशन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।